Hello everyone, welcome to the next session of science. Today we are going to focus on chapter sound. Now this chapter is divided into three components. The first one talks about the understanding part of the particles that are related to the traveling of sound waves. So we deal at the microscopic level and we understand the characteristics of sound like wavelength, frequency, amplitude, time period, all these kind of things come in the first component. The second one deals with the graphs. All these things that we understand in the first component, how do we make them? How do we show them in a graph? This is all about the second part. And the third part is more of a understanding and hence learning part in which you will not get too much of challenging questions. They can be straightforward. So like the structure of ear, the infrasonic versus ultrasonic waves, all these kind of questions will be straightforward in nature. So in today's assignment, we are going to focus on the first two components of the chapter, and hence we'll see how challenging the questions can be. So these are the questions of the day. Make sure you're taking a screenshot, solving all of them, and then we'll discuss about the solutions. Right then, first question, one of the most important characteristics of sound is amplitude itself. So when we talk about amplitude, we have to understand it from the particles point of view. इस पूरे चैप्टर में ना हमने ये देखा है कि साउंड प्रोड्यूस होना एक चीज है, which is called generation. Traveling is more important, and hence we understand everything related to the traveling part. Now, particles, how much will they move? How much distance would they cover? Like particles move to and fro. So कितना to and fro होगा? कितने millimeters, कितने centimeters या meters होंगे? It totally depends on how much energy we are putting in. So if I am speaking very loudly, or if I'm applying a lot of energy while I'm speaking, in a way, I'm applying a lot of force on these particles, and hence these particles would move larger distances. And there are thousands of particles. Everyone would be moving large distances. So जितना आप maximum displacement achieve कर पाते हो as a particle from the mean position. Mean का मतलब है जो उसकी original stationary position थी. So let's say particle पहले यहाँ पे rest पे था before I was speaking, and then suddenly एक pressure apply होता है इस पे, and this particle has to move ahead. So this much of distance x it has to travel, और इसमें इतनी ही एनर्जी है कि ये x distance travel कर पाया, and then it will have to come back because collision होगा, to and fro motion होगा, so it will have to come back. Let's say अब इस मीन पोजीशन से वापस सिमिलर डिस्टेंस x ट्रैवल करता है ये, एंड देन टू एंड फ्रो की वजह से वापस से ये मीन पोजीशन पे आ जाएगा, एंड दिस सेम थिंग विल बी हैपनिंग पैरेलली विद ऑल द पार्टिकल्स. सो जितना आपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव करवाया, दैट इज सिंपली एम्पलीट्यूड. वी हैव अंडरस्टूड एम्पलीट्यूड कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, सिंपली बाय अप्लाइंग मोर फोर्स, बाय स्पीकिंग लाउडली इन अ वे. And that is the reason why loudness as a concept is related to amplitude as well, in the sense of amplitude square. So आप जितना ज्यादा फोर्स लगा रहे हो, आप उतना ज्यादा पार्टिकल्स को दूर तक ट्रैवल करवा रहे हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल रीच फार्दर डिस्टेंसेस, ज्यादा ट्रैवल कर पाएंगे. यानी कि अगर स्पीकर बहुत दूर होगा, वहां तक भी वो पार्टिकल्स अपना मैसेज पहुंचा पाएंगे, एंड हेंस हम बोलेंगे कि लाउडनेस ज्यादा है. सो इनफैक्ट मुझे थोड़ी सी फोर्स इंक्रीज करनी है while I am speaking, because of the square factor here, loudness बहुत significantly increase हो जाएगी. Like for example, there were some questions in the notes as well कि अगर आप amplitude को 2 times increase करते हो, तो loudness पे कितना फर्क आएगा? It would be rather 2 square. यानी कि अगर amplitude 2 times increase हुआ है, तो loudness will increase 4 times. Simple direct proportion. अगर आप amplitude को 4 times increase करते हो, तो loudness will rather become 4 square, यानी कि 16 times. So just imagine, you just need to apply a bit more force and the effects will be significant. Now, since this is all distance, the SI unit has to be in meters. This is somewhat related to wavelength. We'll understand in the next question. And how do we denote amplitude? By capital A. The next category is quite interesting. It talks about the characteristics. Normally, you would see there are two types of classifying these things. This chapter is there in class 9th as well. A few of these things we will be seeing in detail in class 9th. A lot of these things would have seen in class 8th itself. So for example, wavelength as a concept is not taught in some schools in class 8th. While these all concepts are taught, not too much of speed as well. So how can we relate speed and distance? All this will come in 9th. Loudness we have studied, pitch we have studied, not too much of quality, you can say. So that is the reason why I have mentioned both the types.
It is up to you to decide what has been told in your school, what are the main characteristics. You will follow the keywords out of these. I'm sure इसके बाहर कोई खास keywords नहीं होंगे. Everything out of the characteristics part belongs to this area only. So if you see 5 plus 3, in all, there are 8 things that can explain us in detail about sound end to end. Now, एक एक करके इन पे देखते हैं. Let's say we focus on this graph. First of all, ग्राफ में वर्टिकल डिस्टेंस जो है, जो ये माउंटेन है, उसकी कितनी पीक अचीव हो रही है, कितना वर्टिकली वो हाई लेवल पे जा रहा है, दैट इज शोन बाय एम्पलीट्यूड. सो इट बेसिकली मींस कि आपने पार्टिकल को अगर बहुत ज्यादा मूव करवाया, इट ट्रैवल्ड फादर डिस्टेंसेस, तो हम वो डिस्टेंस ऐसे वर्टिकली शो कर रहे हैं. अगर लेट से आपने फर्दर और थोड़ी सी फोर्स लगाई, तो वो डिस्टेंस और हाई हो जाएगा, यानी कि ये पीक और हाई पे अचीव हो जाएगी. एंड इफ इट इज गोइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, same thing will happen in the fourth quadrant because it has to be a symmetrical graph. तो जितना डिस्टेंस आपने यहाँ पे कवर करा, उतना ही यहाँ पे कर रहे होंगे. दिस इज अबाउट एम्पलीट्यूड. वेवलेंथ क्या होता है नाउ? वेवलेंथ सिंपली मींस वेव की लेंथ. एंड व्हेन यू मेक दिस ग्राफ, you know that one wave is kind of this. जब आप एक सिमेट्री अचीव कर लेते हो, यानी कि वन माउंटेन इन द फर्स्ट, सेकेंड माउंटेन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, क्रेस्ट रो बोलते हैं जिनको. तो अगर आपने ये पूरा अचीव कर लिया है, zigzag मोशन में बना लिया है, दिस इज वन वेव फ्रॉम these between these two areas, you can say. So since this is one wave, इसका आपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस निकालना है, बट हॉरिजॉन्टली, यानी कि यहां से लेके ओरिजिन से लेके एक्स एक्सिस के इस कोऑर्डिनेट तक जो भी डिस्टेंस होगा, लेट्स से ये 5 मीटर्स है जस्ट फॉर इंस्टेंस, तो ये आपकी वेवलेंथ हो जाएगी, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करते हैं. अगर आपने फोर्स बहुत ज्यादा लगाया है, तो आपकी डिस्टेंसेस वर्टिकली इंक्रीज होंगे, और जो वेव की लेंथ है, इट सिंपली मींस कि आपने कितनी ज्यादा वेव को मूव करवाया है. एंड देन वी टॉक अबाउट टाइम पीरियड. नाउ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर. इसको हम थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं. स्पीड इज जनरली द स्पीड, की किस स्पीड पे ट्रैवल कर रही है आपकी साउंड. इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक व्हाट इज द मीडियम, सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रैवल करेगी बिकॉज पार्टिकल्स आर टू मच, and since there are too much particles, they will help you move the waves very quickly. Loudness, I told you already. Pitch or shrillness is something that's related to an example of, let's say, kids versus the adults. So kids है, उनकी pitch high होती है, उनकी frequency high होती है, and hence उनकी pitch high होती है, and they are more shriller in nature, यानी कि sharp voice होती है. Versus the adults, they will have a less pitch. तो यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन हो जाती है. हम ये सोचते हैं कि जिसकी भारी वॉइस है, जिसकी एडल्ट वॉइस है, वो पिच ज्यादा लेके चल रहा है. ऐसा नहीं है, रादर रिवर्स रिलेशन है. इफ यू हैव हेवी वॉइस, दैट मींस योर पिच इज रादर लेस. क्वालिटी ऑफ साउंड कम्स इनटू प्ले व्हेन यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश टू साउंड्स व्हिच आर वेरी मच सिमिलर इन नेचर. कि आपको लग रहा है कि पिच भी सेम है, सब कुछ सेम है. नाउ हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम? इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ साउंड. Some sounds you see की बहुत अच्छी क्वालिटी लगती है, कुछ मॉडरेट क्वालिटी है, कोई पुअर क्वालिटी है. You can obviously guess. So this is related to the quality factor. Now in this graph, time period and frequency is also mentioned. Next case में हम देखते हैं इनकी proper definitions. So टाइम पीरियड बेसिकली ये है कि आपको कितना टाइम लग रहा है वन ऑसिलेशन अचीव करने के लिए. वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है? वन वेव. जो आपने ये चीज बनाई है, this one wave till this point, how much time it takes. तो ये अचीव करने के लिए हम देखेंगे एक्स एक्सिस पे मैंने टाइम डिनोट किया हुआ है. सो सिंपली दिस डिस्टेंस, ये जितने भी यूनिट्स हैं ऑन द ग्राफ, लेट्स से ये 3 यूनिट्स है, तो 3 सेकेंड्स आपका टाइम पीरियड हो जाएगा, यानी कि वन ऑसिलेशन को कंप्लीट होने के लिए यू टुक 3 सेकेंड्स. दिस इज टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी के केस में आप क्या करते हो? आप ये चेक करते हो कि 1 सेकेंड में आप कितनी ऑसिलेशन करवा पाए. क्या आप पूरी ऑसिलेशन करवा पाए, आप मल्टीपल ऑसिलेशंस करवा पाए, या लेस देन 1 करवा पाए, जस्ट फॉर इंस्टेंस. सो कैसे याद रखना है दोनों के बीच में डिफरेंस, बिकॉज दीज टू लुक सिमिलर. टाइम पीरियड के केस में यू मेक श्योर कि ऑसिलेशन इज 1, एंड फ्रीक्वेंसी के केस में यू मेक श्योर कि टाइम इज 1, यानी कि 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड में अगर आप एक्स नंबर ऑफ ऑसिलेशंस करवा रहे हो, तो ये फ्रीक्वेंसी है. फ्रीक्वेंसी ऑलवेज डील्स विथ टाइम एज अ पर्टिकुलर यूनिट, जिसमें हम उसको 1 मान के चलते हैं. एंड टाइम पीरियड के केस में आप वन ऑसिलेशन में कितने सेकेंड्स ले रहे हो उसको अचीव करने के लिए,
ये आपका टाइम पीरियड हो गया. सो दिस इज कैपिटल टी, दिस इज स्मॉल एफ, also denoted by this symbol. Make sure you are clear cut with these two things now. And as I told you in the graph, now time period can be related. यहाँ पे wave to wave दिखाया हुआ है, because यहाँ से अगर मैं यहाँ तक का distance भी देखूं तो one wave complete हो रही है. Now the question is, how do you realize कि one wave complete हो रही है? Everything cannot be in your comfort zone कि आप origin से start करके यहाँ तक लेके जाओ. So simply, if you have one mountain upwards and one mountain downwards, that means your one way is completed. That is one way of understanding it. Let's say आप start ही इस एरिया से कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि आप हाफ ऑफ अ माउंटेन अपवर्ड्स ले रहे हो, कंप्लीट माउंटेन डाउनवर्ड्स ले रहे हो, तो आपको अगेन हाफ माउंटेन अपवर्ड्स लेना पड़ेगा. एज आई सेड, द सिंपल रूल इज यू नीड वन माउंटेन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, वन इन द फोर्थ क्वाड्रेंट. अगर दोनों वन वन कंप्लीट हो जाते हैं किसी भी तरह, तब आप बोलोगे कि वन वेव है. एंड हेंस अगर हम रेड टू रेड चेक करते हैं तो ये पूरी वन वेव है, एंड इसके बीच में जितना भी आपको टाइम लगेगा, दैट इज टाइम पीरियड. Now, the relation between oscillation, this time period and frequency thing, just read it first before I explain. Now, if somehow it is still not clear, the C part specifically, you can tell me in the live class as well. If you require any more understanding, we can use unitary method. We can take some examples of values, or you can try it on your end first. If you don't understand things properly, we'll take some examples and we'll make sure that we understand it properly. Now, let's move to the fourth question. It's all about graph. Fifth question, again all about graph. Right then, अगर हम फर्स्ट केस में सेम एम्पलीट्यूड लेके चल रहे हैं बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज. सेम एम्पलीट्यूड का मतलब है वर्टिकल हाइट सेम रहनी चाहिए, यानी कि एज यू कैन सी दिस डॉटेड लाइन, ये दोनों डिस्टेंसेस दोनों ग्राफ्स में सेम है. दिस इज द फर्स्ट केस हॉरिजॉन्टली एज यू सी. तो एम्पलीट्यूड के केस में आपको सिर्फ माउंटेन की हाइट विच इज वर्टिकल हाइट सेम रखनी है, बट फ्रीक्वेंसी डिफरेंट का मतलब ये होता है कि आपको हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ वेव्स वेरी करनी है. अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आप 1 सेकेंड में कितना अचीव कर पा रहे हो. नाउ इफ यू टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी एज अ कॉन्सेप्ट, तो हमें ये चेक करना है कि 1 सेकेंड में हम कितना अचीव कर पा रहे हैं. सो लेट्स से टिल दिस पॉइंट यू सी कि ये वाला जो पॉइंट है, दिस डिस्टेंस डिनोट्स 1 सेकेंड. तो इतना ही इक्वल डिस्टेंस अगर हम यहाँ पे बना लें, फॉर एग्जाम्पल वो इक्वल ही है, तो ये दोनों 1 सेकेंड हो गए. अब दोनों के 1 सेकेंड्स में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितनी है? इन द फर्स्ट केस नंबरिंग इज देयर. 1 का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट ऑसिलेशन कंप्लीट हो रही है, यहाँ पे सेकेंड, हियर थर्ड एंड सो ऑन. सो द सिक्स्थ ऑसिलेशन इज कंप्लीटेड हियर. सो 1 सेकेंड में यू हैव 6 ऑसिलेशंस एंड हेंस फ्रीक्वेंसी शुड बी 6 number of oscillations per second if you remember. So simply frequency is equal to 6 hertz. Hertz में होती है frequency, and if we talk about this in this case, we have only 2 oscillations and hence frequency is only 2 hertz here. So in the first case the frequency was 3 times. Frequency high थी, that means pitch high थी, that means shrill voice थी, so it was a case of kid versus second one is the case of an adult. ऐसे क्वेश्चंस ग्राफ बेस पे भी आ सकते हैं कि आप सिर्फ ग्राफ देख के बताओ कि एडल्ट कौन है और किड कौन है, या फिर मेन कौन है, विमेन कौन है, या फिर कोई साउंड सिस्टम्स है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. सो यू शुड बी क्लियर कट अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि किन की पिच हाई होती है, किन की लो होती है. बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिटेक्ट इट फ्रॉम द ग्राफ एज वेल. नाउ द सेकंड केस इज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि हमें इस टाइम पीरियड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इक्वल रखनी है. तो हमने दोनों केसेस में यहाँ पे 2 ऑसिलेशंस रखे हैं. मेक श्योर आप टाइम पीरियड इक्वल रह रहे हो तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पहले इक्वल लेके चलो, सो ताकि आप ये बता पाओ कि इस पूरे डिस्टेंस पे सिर्फ 1 सेकेंड रिप्रेजेंट हो रहा है. एंड यू हैव 2 ऑसिलेशंस, दैट मींस फ्रीक्वेंसी इज नाउ सेम बट क्लियरली द हाइट डिफरेंस इज देयर, यानी कि एम्पलीट्यूड यहाँ पे ज्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे लाउडनेस मच मोर होगी एज कम्पेयर टू द फर्स्ट केस. थर्ड में आपको कुछ नहीं करना, आपको दोनों ही चीजें चेंज करनी है, यानी कि आपको वर्टिकल हाइट भी चेंज करनी है, आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी चेंज करना है. सो किसी भी एक केस में अगर हम देखें, फर्स्ट केस में वी हैव 3 ऑसिलेशंस, यानी कि हमने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी. 3 ऑसिलेशंस वर्सेस 2 ऑसिलेशंस, तो फ्रीक्वेंसी इज सॉर्टेड आउट. वर्सेस हाइट भी अगर हमने चेंज कर दी, सेकंड केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा कर दिया. अब ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जिस केस पे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है उसी केस में एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा. So mix and match. You see, this is a random case in which both things are getting changed.
Finally, it talks about the pitch thing, which we just understood from the previous case as well. पिच के लिए आपको सिर्फ ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी का क्या डिफरेंस है. अब यहाँ पे टाइम पीरियड इक्वल मान के चलना है. इफ यू हैव डेटा फॉर ओनली दिस मच ऑफ एरिया, तो आपको नीचे वाले ग्राफ में भी कुछ ऐसी कंपेयर करना है कि आप सिर्फ दिस मच ऑफ एरिया कंसिडर कर रहे हो बिकॉज ऑफ कंपैरिजन. उसके आगे कुछ हो रहा है, मे बी इट टुक सम मोर टाइम फॉर द साउंड टू ट्रैवल, वो अलग चीज है. बट हमें कंपैरिजन के लिए टाइम को सेम रखना होगा एंड वील अज्यूम लेट्स से कि ये 1 सेकेंड है या ज्यादा भी हो सकता है. फॉर इंस्टेंस अगर ये 1 सेकेंड है, तो फर्स्ट केस में हाउ मेनी नंबर ऑफ वेव्स आर देयर वर्सेस इन सेकेंड केस, obviously this is much more in terms of number of waves and hence frequency ज्यादा है, pitch ज्यादा है, shriller voice है, kid की voice second है इस केस में. So that would be it for today's class. Thank you everyone.